we were talking about last week. We were talking about defining a custom composite data type, which is a data type that has many different boxes, many different fields for different kinds of data. And we saw an example that if you want to represent a person in your program, then this is how you might do it. Struct is a keyword, and then these curly braces enclose whatever fields you want to be stored inside this composition data type. This is the name of this data type, we're calling it person, and this semicolon has to be there. And we said that when you write something like this, it does not actually allocate any memory, and the memory is allocated only when you create variables of this type. And the way you can do that is by a statement like this, for example, or you could even create an array of structures. सर मेमोरी नहीं एलोकेट करता कोई इन्फॉर्मेशन जैसे बता सकते हैं कि ये पर्सन एक चीज़ होती है, इसमें आईडी होगा, इसमें आपका चार होगा, तो ये चीज़ें मेमोरी नहीं लेती, ये चीज़ें याद रखना. Yes, so the purpose of this particular part is for the compiler to know exactly what the variable of this type will look like once it is created in memory. The variable actually is created on this line, लेकिन when the compiler comes to this line, it tries to figure out कि इस data type का क्या मतलब है. The compiler already knows कि int क्या होता है. Compiler already knows float क्या होता है, double क्या होता है, car क्या होता है, but it doesn't know what this type is. So in order to figure this out, it needs this description, this definition. So that's what this serves as. So every variable definition, the compiler refers to this definition and it creates variables accordingly. And if you have done a variable creation like this, you've created a variable name p which is of type struct person, then you would probably want to refer to the ID or the name or the age or maybe two of these or all three of these or just one of them. And the way you access the fields in a structure variable like p is using the dot operator. Membership operator भी इसको कहते हैं. So you can write p dot id and that would refer to the id portion inside that variable name p or p dot name or p dot age. और हमने like any data type, you could even create a pointer to a structure of this type. So if you had a pointer to struct person, for example, by extracting the address of this variable name p, then how do you go from ptr to id, name and age? The shortcut is to use the arrow for dereferencing, which is the minus symbol followed by the greater than sign. Or you could also, if you want, you can use the asterisk operator as well. And we also saw an example. So you could do ptr arrow id instead of p dot id, ptr arrow name instead of ptr dot name, and so on. So be careful whether you're dealing with a structure variable itself or a pointer to a structure variable. We need to pick the dot or the arrow operator accordingly. And we also saw an example last week where we passed a pointer to a function and we wanted that function to modify that pointer, but it was not working. We were trying to allocate an array. And the way that we solved that problem is by passing a double pointer or a pointer to a pointer. Calling function के जो pointer variable था उसका address हमने pass कर दिया and using that address that function was able to modify the address on that pointer variable. So moving on, let's look at that linked list which we have created so far. तो ग्रुप में मजाक वगैरह भी करते होंगे बच्चे. So we had the main function, and inside main we defined a head pointer to them. So recall that the linked list has a special pointer named head, for example, shown on the board over here. And the purpose of this variable is to store the address of the first node in the linked list. अगर linked list खाली है तो we store null linked list, और अगर इसमें linked list में कुछ nodes हैं तो this is going to be first node in the linked list. For example, over here. So this is the head pointer. This is the only pointer that we have to anything in the linked list.
So when you are processing a linked list, you access the head pointer, you get to the first node, and then उस node से अगले node पे जाने के लिए you access this pointer, the next pointer जिसको हमने नाम दिया था, and then you move on to the next node and the next node and the next node until you encounter a next pointer which is null, which basically indicates कि यहाँ पे linked list खत्म हो गई, there is no more information inside the linked list. और इसका जो structure है वो हमने define किया है इस फाइल में सबसे ऊपर on lines 4 through 7. The struct node has a data portion shown by this bigger part of this box, and then a next pointer which is a pointer to a structure of the same type. So notice that this little box is pointing to another node which looks exactly like the previous one. Okay. पीछे बैठ जाए. So that's the definition of the node structure, and then we built on that in main, and we defined a create node function, and the create node function did what? It created a new node, it assigned the data property equal to the whatever value you provide as argument, in this case it's 10, और इस नए नोड का जो एड्रेस होगा ये रिटर्न करता है. और सिंस इस प्रोग्राम में दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर क्रिएटिंग अ न्यू नोड, तो हमने इसका एड्रेस हेड पॉइंटर में सेव कर लिया क्योंकि ये हमारे लिंक लिस्ट का पहला नोड है. एंड देन वी डिड हेड एरो नेक्स्ट इक्वल्स क्रिएट नोड 20. हमने एक और नोड क्रिएट किया और हमने कहा कि हेड इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, तो मैं इस नए नोड को सेकंड नोड बनाना चाहता हूँ. तो सेकंड नोड बनाने के लिए मैंने क्या किया कि इसका एड्रेस कहाँ स्टोर कर दिया? हेड एरो नेक्स्ट में. एंड वी सेड कि हेड एरो नेक्स्ट बेसिकली मींस क्या कि यू फॉलो हेड एंड देन यू रीच दिस नोड, और इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है व्हिच इज दिस गाय, इसमें ये वैल्यू असाइन कर दें राइट साइड पे क्या चीज़ है, क्रिएट नोड है. सो व्हाटएवर न्यू नोड दैट यू क्रिएट उसका एड्रेस यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा. एंड देन वी डिड हेड एरो नेक्स्ट वगैरह व्हिच इज प्रीटी अर्ली, लेकिन उसको वील फिक्स टुडे. और हमने डिस्प्ले का फंक्शन भी इसका लिखा था व्हिच डिस्प्लेड ऑल द नोड्स इन द लिंक लिस्ट एंड इट सीम टू बी वर्किंग फाइन. हमने एक डिलीट नोड डिलीट करने का फंक्शन भी लिखा हुआ था. सो वी लाइक टू बिल्ड ऑन दैट. एरो के अलावा एरो के अलावा अगर आप करना चाहें, आपके पास एक पॉइंटर है ptr या 10, और उसके थ्रू आप एक्सेस करना चाह रहे हैं किसी फील्ड को, तो पहले आप उस पॉइंटर को डीरेफरेंस कर लें. दिस पॉइंटर इज अ पॉइंटर टू अ नोड स्ट्रक्चर. डीरेफरेंस कर लिया तो अब हमारे पास जो चीज़ ये पैरेंथेसिस के अंदर है, इट इज इक्विवेलेंट टू ए स्ट्रक्चर इंस्टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ टाइप नोड, नॉट अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर बट एन एक्चुअल स्ट्रक्चर. उसके बाद फिर मैं डॉट नेक्स्ट कर सकता हूँ, and equivalently I can do ptr arrow next. So both of these statements or expressions mean the same thing. So equivalent ways of dereferencing a pointer to a structure. This seems to be a little bit easier on the eyes, but they are equivalent. So what I want us to do today is to write some more code for the linked list, and then we'll move on to the next topic. And the code that I want to write should accomplish this. It should insert a new node at the beginning of the linked list. Value हम इसको देंगे कि 10 है, 20 है, whatever. और I want कि ये जो value है, इस value को एक node में डालें और उस node को linked list के बिल्कुल beginning में insert कर दें. Meaning for example, अगर हमारे पास ये linked list exist करती है, दो नोड्स इसमें हैं ऑलरेडी, और मैं इंसर्ट के फंक्शन को कॉल करता हूँ, उसको वैल्यू कहता हूँ 10, तो वो नोड क्रिएट करेगा और फिर ये कनेक्शन इस तरह से बना. ठीक, स्टार्ट में नहीं आया. जी जी, ये हेड वेरिएबल है, हेड पॉइंटर वेरिएबल. सो हेड पॉइंटर वेरिएबल should now start pointing to this node. This node should become the new first node in the linked list. ये वाला एरो ऑब्वियसली टूट जाएगा
क्योंकि दिस इज वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में एक वक्त में एक ही वैल्यू आ सकती है, या तो इसके अंदर इसका एड्रेस आएगा या इसका एड्रेस आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब इसमें इसका एड्रेस आए, सो दिस स्टार्ट्स पॉइंटिंग हियर, और ये वाला एरो गायब हो जाए, और ये नोड इसको पॉइंट कर, ठीक है। फॉर द केस वेयर द लिंक लिस्ट ऑलरेडी हैज सम नोड्स, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। और अगर लिंक लिस्ट खाली पड़ी हुई है फिर क्या करना है, इसका नया नोड आपने बनाया, आपने इसका एड्रेस उठा के इधर स्टोर कर देना है। So this becomes the first node in the linked list, और इसका next pointer null है, which indicates कि इस linked list में अभी कोई और चीज exist नहीं करती। तो ये काम हमें करना है, अगर linked list खाली है तो ये करना है, linked list में कुछ नोड है तो ये करना है। तो spend maybe I don't know a couple of minutes discuss with your neighbors कि इस काम को करने के लिए हमें क्या steps follow करने पड़ेंगे। नो के हमारे पास ये create node का function मौजूद है, और that's pretty much it। head variable हमने define किया हुआ है, और how can we achieve this, तो discuss कर लें, कोई question है तो पूछ सकते हैं। so नया node insert करना है at the beginning of a linked list, खाली भी हो सकती है, उसमें कुछ nodes already भी हो सकते हैं। क्या बोल यार पहले नोड को पॉइंट करा दें। ओके, सो दिस नोड make this node point to the मेड नहीं है head node, all right, head का next, okay, जिसको head point करना है, head तो okay मैं first node लिख दूँ, ठीक है, ओके। और लेट्स सी अगेन, जो ये जो ब्लू वाला नोड क्रिएट हुआ है स्टेप 1 चेक्स आउट, ऑलराइट। स्टेप 2 आप कह रहे हैं कि ये जो नया नोड बना है इसके नेक्स्ट वाले खाने में क्या चीज स्टोर कर दें, व्हाटएवर द फर्स्ट नोड एड्रेस इज। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस इसके नेक्स्ट पे डालना है, बिल्कुल ठीक है। बनाता रहा फिर भी नहीं होगा। और इसके नेक्स्ट में हमने क्या फर्स्ट नोड का एड्रेस डाला है, वेल पहले यहाँ पे नन पड़ा हुआ था, सो या इन अ सेंस हमने हेड की वैल्यू व्हिच इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड हमने उठा के इधर कॉपी की है। यार मेरी राइटिंग में तो कुछ बड़ा इस केस में भी ठीक लग रहा है। नहीं है, बस तू भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हेड को अपडेट कर दें, ओके। हेड हमारा पहले 20 को पॉइंट कर देता है, ऊपर वाली सेक्शन। इस केस अगर लिंक लिस्ट खाली थी तो ये डालो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हम पहले सॉरी आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि नोड के जो नेक्स्ट पे है जी। हेड को पॉइंट कर दें, फिर ठीक। हेड को अपडेट कर दें। ओके, तो स्टेप 3 आप बता रहे हैं कि update the head pointer to new node's address। तो हेड पॉइंटर जो है उसके अंदर नए नोड का एड्रेस डालते हैं। तो अपेरेंटली दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन बोथ सिचुएशंस, एंड दैट्स व्हाट्स सपोज्ड टू हैपन इन बोथ सिचुएशंस। ये नए नोड का एड्रेस उठा के हेड पॉइंटर में डाल दें, नए नोड का एड्रेस उठा के हेड पॉइंटर में डाल दें। दैट्स द ओनली वे ये नोड लिंक लिस्ट का पहला नोड बन सकता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन लिंक लिस्ट का पहला नोड कौन सा होता है, जिसका एड्रेस हेड पॉइंटर में पड़ा होता है। तो
तो हमें इसका एड्रेस उठा के हेड पॉइंटर में डालना पड़ेगा, वरना ये नोड इंग्लिश का पहला नोड नहीं बनेगा। कोई सवाल? इससे पहले अगर हम चेक कर लेंगे लिंक लिस्ट खाली है या बड़ी है। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि इंग्लिश खाली है या कोई समझ। फ्री ऑल है तो क्या वो फ्री ऑल वाला हमें अभी बता दीजिए, वो बेसिकली डी एलोकेशन कर रहा है। सो क्रिएट नोड वगैरह में हमने नोड एलोकेट किया था डायनामिकली, फ्री ऑल में मैंने वो मेमोरी को क्योंकि डी एलोकेट भी कराना होता है, वरना मेमोरी वीक होती है। सवाल? तो वो क्या कहते हैं ये ट्रिवियल नहीं होगा कि आप चेक करो कि पहले हेड में नल पॉइंटेड है या नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी अगर हो तब भी वो अगर एक फर्स्ट पॉइंटर में वो पॉइंटर कॉपी कर लेंगे, अगर नल भी हो तब भी कॉपी कर लेंगे, दोनों केसेस में मसला नहीं होगा। जी। तो डिफरेंट यूज केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो आप ये कह रहे हैं कि वो जो सजेशन थी कि पहले ये चेक कर लें कि लिंक लिस्ट खाली है या नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई उसको मतलब आप बिला वजह के एफर्ट कर रहे होंगे। द रीज़न वाई, क्योंकि यही 3 स्टेप्स अगर आप इस केस में अप्लाई करें तो भी तो आंसर ठीक निकलता है, और अगर यही 3 स्टेप्स आप खाली इंग्लिश पे भी लगाएं तो भी आंसर ठीक निकलता है। सो एक इफ लगा के चेक करना कि इंग्लिश पहले खाली थी या नहीं थी, उससे कोई खास फायदा हासिल नहीं होगा। सो यू डोंट नीड टू क्रिएट इफ एल्स ब्लॉक्स इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन। जी जी हाँ। सो आपका सवाल है कि ये जो हम कर रहे हैं स्टेप नंबर 2, मेक दिस न्यू नोड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, ये क्या होगा जबकि फर्स्ट नोड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बेसिकली इसका मतलब है कि फर्स्ट नोड का एड्रेस आप इस नेक्स्ट पॉइंटर में कॉपी कर देंगे। अगर लिंक लिस्ट खाली पड़ी हुई है तो फर्स्ट नोड का एड्रेस नल होगा। फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या होता है? हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर नल पड़ा हुआ है, सो आप नेक्स्ट वाले पोर्शन में नल डाल देंगे। उसमें वैसे भी नल पड़ा हुआ है, आप एक और नल से उसको ओवरराइट कर देंगे तो कोई ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। इसलिए वो इफ डालने की कोई खास उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। लेट्स सी कि इसका कोड क्या होगा। इधर ही करीब भी लिख देते हैं मेन के एंड ऊपर। सो इंसर्ट एट हेड, वैल्यू मैं इसको प्रोवाइड करूंगा और हेड पॉइंटर भी ज़ाहिर देना पड़ेगा, उसके बगैर ये काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन, do I need to pass the head pointer as a double pointer in this case, or do I just pass it as a regular node pointer? Single pointer या double pointer? Double pointer क्यों? क्योंकि आप हेड की वैल्यू को अपडेट करवाना चाहेंगे इस फंक्शन में। हम वहाँ पे देख रहे हैं कि जो हेड वाला जो डब्बा है उसको अपडेट किया जा रहा है, उसकी वैल्यू को चेंज किया जा रहा है दोनों सिचुएशंस में। तो ये फंक्शन एक पॉइंटर को उसी वक्त चेंज कर सकता है कि आप उस पॉइंटर को बाय रेफरेंस पास करें या डबल पॉइंटर पास करें। तो ठीक है, फिर इसमें डबल पॉइंटर पास कर दें। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू जो डिलीट फंक्शन हमने लिखा है, उसमें भी हमने वो डबल पॉइंटर पास किया था, डबल पॉइंटर पास किया था। क्यों किया था? इसलिए कि हम चाह रहे थे कि वो फंक्शन इस पॉइंटर को हेड पॉइंटर को चेंज कर सके, अपडेट कर सके। एग्जैक्टली